आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान टीआरएस ने अपनी तारीख में बहुत सी कामयाबियां हासिल की। वाज़ेह है कि वजीर KTR जिले राजन्ना सिलसिला का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर जिला हेडक्वार्टर में पद्मानायक केलाना मंडपम में मुनक्किदा पार्टी कारकुनों के इजलास में शिरकत करते हुए खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी कामयाबियों पर हंगामा मचाने वाली बीजेपी को वक्त ही बेहतर सबक सिखाएगा। सब्र को नाअहली समझने वाले बीजेपी कायदीन को संगीन नताइज का सामना करने KTR ने इंतबाह दिया। बीजेपी कायदीन को ये नहीं भूलना चाहिए, हमने वजीर आजम और मरकजी वज़रा को भी नहीं छोड़ा, तो लिहाजा बीजेपी कायदीन बयानबाजी की बातें ना करे तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि KCR ने रियासत जीतकर तेलंगाना की अवाम की इज्जत नफ्स को बरकरार रखा है। ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా. మరి అట్లాంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యత్వాన్ని మనం ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం అంటే తెలంగాణలోని యువతులు ఇది నా పార్టీ, ఈ పార్టీ బాగుంటేనే నా రాష్ట్రం బాగుంటది, ఈ పార్టీ బాగుంటేనే నా ఊరు బాగుపడుతుంది, ఈ పార్టీ బాగుంటేనే నా పట్టణం బాగుపడుతుంది అనే ఒక స్పిరిట్తో, ఒక ఉత్సాహంతో మన పార్టీ మెంబర్షిప్ తీసుకునే విధంగా వాళ్ళను ఉత్తేజితం చేయాల్సిన బాధ్యత మనందరి మీదనే ఉన్నదనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. చాలా మంది చాలా మాట్లాడొచ్చు గాక, చెప్పొచ్చు గాక, ఎటు పడితే అటు మతం పేరు మీద, కులం పేరు మీద రెచ్చగొట్టొచ్చు గాక, కానీ ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు చైతన్యవంతులు చేస్తూ ఉన్న ఒకటే ఒక గొంతుక తెలంగాణకు, టీఆర్ఎస్ రూపంలో ఉన్న ఒకే ఒక గొంతుక తెలంగాణ ప్రజల ఇంటి పార్టీ అయిన టీఆర్ఎస్ పార్టీని బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన మీదనే ఉన్నదనే విషయాన్ని నొక్కి చెప్పవలసిన బాధ్యత కూడా మనందరి మీద ఉన్నదని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఈ సభ్యత్వ నమోదు అంటే కేవలం ఏదో తూతూ మంత్రంగా చేయడం కాదు. జనరల్గా ఏం చేస్తాం మనం, సభ్యత్వ నమోదు అంటే పుస్తకాలు తీసుకుంటాం, టార్గెట్లు ఇచ్చిండ్రు, మనోళ్ళ ఇళ్ళకి పోతాం. మొదలు మన నాయకులు ఎవరు, మన కార్యకర్తలు ఎవరు, మొదలు మనోళ్ళ ఇళ్ళకి పోయి ఆడ రాయించుకొని ఆఖరికి మళ్ళా కసిరి కాడనో ఆడనో ఇన్నో కూర్చొని మిగతా బుక్కులు నింపి ఇచ్చేస్తాం. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కొడతా ఉన్నాను, అట్లా చేయకండి. ఈ 15 రోజుల పాటు ఈ నెలాఖరు దాకా మన నాయకుడు, మన పార్టీ అధ్యక్షులు KCR గారి ఆదేశం ఏంది అంటే ఇంటింటికి పోండి, ఇంటింటికి పోయి, ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు, బీజేపీ పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు, ఇంకో పార్టీ కార్యకర్త కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా రైతు బంధు వస్తున్నది, వాళ్ళకు కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తున్నది, వాళ్ళకు కూడా 24 గంటల కరెంట్ వస్తున్నది, వాళ్ళకు కూడా మిషన్ భగీరథ నీళ్లు వస్తున్నాయి, వాళ్ళ పొలాలకు కూడా కాళేశ్వరం నీళ్లు, ఇంకా ఇతర ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు నీళ్లు వస్తున్నాయి. వాళ్ళు కూడా మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న కార్యక్రమాలు, మన నాయకుడు తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల వాళ్ళు కూడా లబ్ధిదారులే. మీరు గట్టిగా అడిగితే వాళ్ళు కూడా మన వెంబడినే వస్తారు. పైకేదో వేరే మాట్లాడతారు, కానీ లోపల వాళ్ళకు కూడా నిండా మనమంటే అభిమానమే ఉంటుంది. నేను అందుకే మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నాను. ఊళ్ళో నేను చూస్తూ ఉంటా, పోయినప్పుడు మనోళ్ళు అన్నా ఇది మనోళ్ళు కాదు అని తీసుకోబోతుంటారు ముంగటి. మనోడు మందోడు ఎవడు కాదు, తెలంగాణలో ఉండే 1 కోటి కుటుంబాలు అన్ని మన కుటుంబాలే తప్ప ఎవ్వలేం లేరు, వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మన పార్టీ అందరి పార్టీ. కాబట్టి దయచేసి నేను మిమ్మల్ని కోరేది, वजीर अफजाइश व मवेशिया तलसानी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC में TRS पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। मेयर और डिप्टी मेयर ने कल का इंतखाब सादा अक्सरियत से जीता। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन हुकूमत पर तनकीद करना छोड़ दें और रियासत की तरक्की के लिए ताउन करें। रियासत में कई फलाही प्रोग्रामों पर अमल और जारी है। उन्होंने कहा कि TRS और MIM की आपसी मिली भगत है। बीजेपी कायदीन का ये कहना शर्मिंदगी की बात है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि TRS के पास मेयर और डिप्टी मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए सादा अक्सरियत मौजूद थी और ये अपने पास 88 वोट्स रखने के बावजूद मजलिस की तायद हासिल की, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 49 वोट्स ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है और बहुत जल्द रोजाना पानी सरबराह किया जाएगा। बीजेपी कायदीन मजहब के नाम पर सियासत कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों के साथ गैर अखलाकी इत्तेहाद करके बीजेपी ने रुकन
कुन रियासतों में कामयाबी हासिल की है, मुल्क की अवाम में बखूबी जानती है। దాంతో పాటు మా ఎమ్మెల్యేస్ హైదరాబాద్ సిటీ ఎమ్మెల్యేస్ ఎక్స్ట్రా కూడా మేము 31 వాడుకోండి, మాకు అవసరం లేదా. రెండోది మేము మీకు 3-4 రోజుల నుంచి మీరు కూడా టీవీలో పేపర్లో రాస్తారు. మేము చర్చలు చేసినాం, ఎవరితోనా సీక్రెట్గా మాట్లాడినామా, మీకు క్లియర్గా చెప్పింది. పోనీ మేము తీసుకొని డిప్యూటీ మేయర్ ఎవరికైనా ఇచ్చినామా, మా పార్టీ కదా. అరే ఇద్దరు మహిళలు ఒక మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ వస్తే ఓడ్చుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకండి మీకు? ఏది మాట్లాడినా కానీ ఇక మాకున్నది మేము ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడేస్తాం. ఇక మేము ఎవరిని గౌరవించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళ మీద ఏంది ఇష్టం ఉన్నట్టు సోషల్ మీడియాలో, టీవీలల్లో, పేపర్లల్లో మీ ఇష్టం ఉన్నట్ట. బాధ్యతగా ప్రవర్తించండి, బాధ్యతగా మాట్లాడండి. నిన్న ఈ వెరీ సింపుల్ మెజారిటీ, ఆ సింపుల్ మెజారిటీ కాకుండా ఇప్పుడు హౌస్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ అందరూ ఉన్నప్పుడు, అందులో మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు, హౌస్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్సు బీజేపీకి ఓటు వేయలేనటువంటి మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్న కేసు పుట్టారు. అది సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది. భారత పార్లమెంట్లో జరిగిందా? భారత పార్లమెంట్లో కూడా కొన్ని సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు, ఓటింగ్ జరిగినప్పుడు అక్కడ కూడా జరిగింది. దాన్ని పట్టుకొని వాళ్ళ ఇష్టం అన్నమాట ఏదో మాట్లాడితే. ఇప్పుడు నేనేమంటే 24 గంటల కరెంట్ ఇవ్వడానికి ఎంఐఎం చేయమన్నారు. वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौड़ ने कहा कि टीआरएस तेलंगाना में एक जबरदस्त सियासी कुव्वत रखने वाली जमात है। जुम्मे के रोज वजीर सत्यवती राठौड़ ने जिला महबूबाबाद के एमएलए कैंप ऑफिस में टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज किया और मेंबरशिप की पहली कॉपी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि पार्टी के आगाज की 20वीं सालगिरह के मौके पर रुकनियत के इंदराज के प्रोग्राम का आगाज करते हुए इन्हें खुशी महसूस हो रही है। उन्होंने कहा कि हर हलके में 50,000 मेंबरों के इंदराज का हदफ है। कारकुनों को मशवरा दिया गया है कि आने वाले वक्त में ज्यादा मेहनत करें। इन 3 माह के दौरान पार्टी कारकुनों की मुस्तकिल खिदमत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई साल दौरे इख्तिदार की तारीख रखने वाली कांग्रेस और मौजूदा बरसर इख्तिदार बीजेपी ने अवामी फलाह व बहबूद की कोई काम नहीं। उन्होंने कहा कि टीआरएस कारकुनों को इंश्योरेंस फराहम कर रही है और सालाना 16 करोड़ से 18 करोड़ रुपए के प्रीमियम अदा कर रही है। इस मौके पर महबूबाबाद के एमएलए शंकर नायक, एग्रोज के चेयरमैन लिंगमपल्ली किशन राव के अलावा दिगर भी मौजूद थे। नारायणखेड़ हलके के अपने दौरे के दौरान वजीर खजाना हरीश राव तेलंगाना और कर्नाटक के सरहदी जिले बीदर के एक गांव में रुके और देहातियों से बातचीत की। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने मुकामी देहातियों से अवामी फलाही स्कीमात की अमलवारी और इससे इस्तेफादा और किसानों को दी जाने वाली इमदाद के बारे में मुकामी ख्वातीन से दरियाफ्त किया, जिस पर ख्वातीन ने इन्हें दरपेश मसाइल से वजीर को वाकिफ कराया। वहाँ पर 6 किलो चावल देते, हर आदमी को हम 6 किलो देते, यहाँ 5 दे रहे। शादी में कुछ देते यहाँ पर? क्या भी नहीं दे रहे। शादी लड़की का शादी करे, लड़की की शादी का क्या भी नहीं दे रहे। वहाँ क्या देते? 1 लाख दे रहे। फोटो वीडियो नहीं। जब हमारे बहन को शादी करा जो 50,000 दिए, अब 1 लाख बोल रहे। अब पहले 50 का पहले 50 बढ़ा दिए, लाख बोल रहे, अब 1 लाख बढ़ा दिए। यहाँ कुछ भी नहीं दे रहे, शादी को नहीं देते। अच्छा, पानी का कितना तकलीफ है आप लोगों को? यहाँ पर पानी नहीं आता। तो शादी के लिए कुछ पैसे देते? नहीं देते। लड़की की शादी है नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते। अच्छा, हमारा पास हम 1 लाख रुपए देते हैं। हमारा नाम है सर, पूरा हम यहाँ पे लोकल में सर, तुम्हारा नाम प्रोफेसर, इधर हमारे तरफ कुछ नहीं। बिजली में तकलीफ है, पीने का पानी घरों पे नहीं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने निजी और कॉरपोरेट इदारों के लेक्चरर्स और असातिज़ात को फौरी तौर पर
तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि चैतन्यपुरी जूनियर कॉलेज लेक्चरर डॉक्टर हरिनाथ ने तनख्वाह की अदायगी में ताक़ीर पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए बंडी संजय ने कहा कि हरिनाथ की खुदकुशी की कोशिश ने इन्हें गहरा दुख पहुंचाया है। जुमे को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस कायदीन अवाम फलाही कामों पर तवज्जो न देकर बदउनवानियों में मसरूफ हो गए हैं। మేము అనుకున్నాం మాకు రక్షణ వచ్చాను మేము అనుకున్నాం వాళ్ళు వేరే వారి ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీకి రక్షణ కోర్టు ఉత్తర్వులు పట్టించుకుంటారు వాళ్ళ దాన్ని ప్రశ్నించడానికి పోతే సరే కొంతమంది కార్యకర్తలు అక్రమ కట్టడము దాడి చేసే ప్రయత్నం చేశారు కానీ అక్రమ కట్టడాన్ని పేద ప్రజల స్థలాలను కబ్జా చేసుకున్నారని మీరేంటారు నిన్న మొన్న కళ్ళ గంతలు కట్టి గౌరవ మేజిస్ట్రేట్ ముందు రికార్డు చేస్తాం మేము మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేసిన ఎస్పీ గారిని మీరు కార్యకర్తలు వేధించకండి మేము సహకరిస్తాం మీ సిఐ గారే గతంలో పేద గిరిజన స్థలాల కోసం 30 రూపాయించిండు హత్యాయత్నం కేసు పెట్టిండు కంట్రోల్ చేయండి అని చెప్పాను మళ్ళా నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఇష్యూ ఖమ్మం పోయి ఖమ్మంలో నుండి నాయకుల మటుకు మళ్ళా కిడ్నాప్ చేశారు। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पेश आए एक वाक़े में हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और कॉरपोरेटर के रमेश को नामालूम अफराद ने बेदर्दी से हलाक कर दिया। ये वाक़या काकीनाडा में आरटीओ ऑफिस के करीब निस शब को पेश आया। इत्तला के बाद जाए हादसे पर पहुंची पुलिस ने जख्मी हालत में के रमेश को दवाखाना मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ तहकीकात है। वाज़ेह है कि मपारा रमेश 9वें वार्ड का कॉरपोरेटर है। काकीनाडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कायमा कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहा है। वो तवील अरसे तक कांग्रेस पार्टी में खिदमात अंजाम दी थी। मुल्क में 24 घंटों में 9,000 कोरोना के केसेस, मजमूई तादाद 1,08,80,000 से तजावुज कर गई। दुनिया में 24 घंटों में 4,37,000 कोरोना के केसेस, मजमूई तादाद 10,82,00,000 से तजावुज। आंध्र प्रदेश में 4 माह के दूल्हा दुल्हन की मुश्तबा हालत में मौत हो गई और इनकी नाशिया मकान के बाथरूम से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक चित्तूर जिले के पाकल्ला मंडल में 32 साला अल्ताफ हुसैन अपनी बीवी 30 साला सामिया के साथ रहते थे। इनकी 4 माह कबल शादी हुई थी। सामिया विडेपल्ली ग्राम सेक्रेटरिएट में विमेन पुलिस की हैसियत से खिदमात अंजाम देती थी और अल्ताफ हुसैन बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वो घर से काम कर रहा था। सामिया जुमेरात को ड्यूटी पर नहीं गई और अपने गैर हाजिरी के बारे में कोई इत्तला भी साथियों को नहीं दी, जिस पर साथी विमेन पुलिस सामिया के घर गए और देखा कि दोनों शोहर और बीवी बाथरूम में मुर्दा पाए पड़े हैं। मामले की इत्तला पुलिस को दी गई, जो मौके पर पहुंच गई। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुकामी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने वाक़े पर मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। अभी तक इस जोड़े की मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी है। इन दोनों का कत्ल कर दिया गया या उन्होंने खुदकुशी कर ली। पुलिस तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने ऐवान बाला में खिताब करते हुए कहा कि मरकज का बजट मुल्क की जायदादों को नीलाम करने का, फरोख्त करने का बजट है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की जायदादें किसी की जाती जायदादें नहीं हैं। उन्होंने बजट को तनकीद का निशाना बनाया।
मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, बुरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर? ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर? क्यों बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? अरे सुनो ना, सच को सुनो। यहां पे कहा गया कि अरे ठीक है, इनको बगैर पानी पिया मैं ठीक करूंगा, चिंता मत करो। यहां पे कहा गया मान्यवर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं चौधरी चरण सिंह को याद कर लीजिए, डॉक्टर लोहिया को याद कर लीजिए। संजय जी प्लीज हमें स्टार्ट तो याद कंक्लूडिंग। है प्लीज स्टार्ट डॉक्टर कंक्लूडिंग। लोहिया भी, चौधरी चरण सिंह भी, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन से इस देश को आजाद कराया, हमें संविधान दिया, हमें संसद दी, हमें लोकतंत्र दिया, हमें यहां बोलने की आजादी दी। यहां पे प्रधानमंत्री जी अगर आए हैं तो उन्हीं लोगों के बलिदान की बदौलत आए हैं। संजय जी प्लीज उन्हीं कंक्लूड। लोगों की बलिदान संजय की जी बदौलत आए हैं। प्लीज कंक्लूड, इतना योर तो टाइम याद इज कर ओवर। लो, कंक्लूड कर रहा हूं सर, इतना तो याद कर लो। इसीलिए बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ जो आपका है, आपने चौधरी चरण सिंह को कोट किया, आप बीएमएस को पढ़िए, आप स्वदेशी जागरण मंच को पढ़िए। अरे आपके संगठन खुद कहते हैं कि आप कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। राहुल ने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम मोदी ने हिंदुस्तान की सरजमीन चीन के हवाले कर दी है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को इसका जवाब देने की जरूरत है। कल राज्यसभा में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरक़ी सरहद की सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ्त के बारे में एक बयान दिया था, जिस पर राहुल गांधी ने रद्द अमल का इजहार किया है। हमें मालूम हुआ कि हिंदुस्तानी फौज फिंगर 4 से फिंगर 3 में चली गई। फिंगर 4 इलाकाई हुदूद होने के बावजूद क्यों फिंगर 3 में मुंतकिल हो जाए। राहुल ने सवाल उठाया कि मोदी हिंदुस्तान की सरजमीन को चीन के हवाले क्यों कर रहे हैं। राहुल ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी हिंदुस्तानी फौज की कुर्बानियों से गद्दारी कर रहे हैं। Is irrelevant. Kailash has been given back, and nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. That is the fact. And yesterday the defense minister is giving a little statement, silently, sheepishly. Why didn't the Prime Minister come and say this? Why is he making the defense minister make this statement? Prime Minister should say, I have given Indian land to China. This is the truth. Thank you, sir. Siddharth from ANI. नहीं सॉरी, आप किस पे जवाब पूछ रहे हैं? मैं अभी जो बोला हूं, आपको लगता है सवाल मिला मुझे? देखिए, सवाल यह है, हिंदुस्तान की जमीन है, नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी है, ये सवाल है। वजह है कि नरेंद्र मोदी चाइना के सामने खड़ा नहीं हो पाया। हमारी आर्मी खड़ी है, वो तैयार है खड़े होने के लिए, एयरफोर्स तैयार है, नेवी तैयार है, मगर प्रधानमंत्री तैयार नहीं है। ये वजह है। Thank you, sir. Uma from NDTV. वजीर ममलिकत बराए मालियात अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि आम बजट में किसानों की आमदनी को दुगना करने, हर तबके की फलाह व बहबूद और मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग का मजबूत गढ़ बनाने के इल्तजामात किए गए हैं, जिसमें आत्मनिर्भर और मजबूत हिंदुस्तान की उम्मीद नजर आती है। जुमे को ऐवान बाला राज्यसभा में साल 2021-22 के बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए
ठाकुर ने कहा कि बजट में खुद इन्हिसारी और मजबूत हिंदुस्तान की उम्मीद नजर आ रही है। मुल्क में पहली बार बजट में अब तक के 34% का इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने सबसे ज्यादा लोगों को इफ्लास से निकालकर तारीख रकम की है। शेड्यूल कास्ट बरादरियों के बजट में इजाफा किया गया है। गरीब और पसमानदा तबकात को गैस, बैतुल खला, LED बल्ब और साफ पानी जैसी बुनियादी चीजें फराहम की। पसमानदा तबकात के लिए मख्तस रकम में 28%, मौजूरों के लिए 30% और मिशन शक्ति के लिए 16% इजाफा किया गया। उन्होंने कहा कि बजट में साल 2025 तक मुल्क को TBC पाक बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लेकिन कौन सी वो 2 कंपनियां थी जिसको आपने देश के बड़े 4 एयरपोर्ट दे दिए? ना आपने दिल्ली छोड़ा, ना मुंबई, ना हैदराबाद, ना बैंगलोर। क्या आप जवाब देंगे? ये 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का समय आपके समय शुरू हुआ था, जो उसके बाद मिला है। एयर इंडिया की दुर्गति किसने की? अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।